Hello, Namaskar, friends and my dear students. Now I am providing the lecture to be continue for the presentation of three-dimensional molecule by two-dimensional manner and its conversion. In the before lecture, I, I studied that what type of representations we use to present the 3D molecule into 2D manner. In the stereochemistry, it is necessary to study that which type of presentation, which type of formulas, which type of projection formulas we use to present the we use to represent the 3D molecule into 2D manner. In the previous lecture, we studied the first of all fish flying wedge formula, flying wedge representation, and second one is Fisher projection formula. In the flying wedge formula, we know that the 3D molecule in the 3D molecule in the 3D molecule, the molecule or atom towards the observer and away from the observer. These two types of molecular bonds and atoms are represented by ways dash dash and solid ways dash dash and solid ways. In case of solid ways, we can we share here. Then we talk about that. That is represented as this. This is the flying wedge representation. In the previous, we studied that the towards the observer, it is denoted by the solid wedge, and away from the observer, it is represented by dash dash dash. And and remaining two bonds are settled in xy direction and xy 2D manner, but in towards and in the plane represented by dash dash and flying wedge. Okay. Now, my dear friends, this is the flying wedge representations we already studied. Now we study the Fisher projections in the few minutes. We take the few minutes for the recall the Fisher projection. Fisher projection. Now, in this is the simplification of the flying wedge representation in which two solid line draw, first of all vertical and horizontal. We know that the vertical line represent the carbon chain, main carbon chain, and the top of the vertical line represent the highly oxidized group and molecule and functional or group or molecules or functional groups. But in the bottom, it represents the lower oxidized molecule or atom or any functional groups. The flying wedge projection is simplification. Why? Because the flying wedge projection represented by dash dash and solid wedge, but in case of the Fisher projection, it is not necessary.
It is simplify and vertical and horizontal line because the carbohydrates and amino acids, it is a macromolecules, not micro, macromolecules. Therefore, we cannot draw in the bulk by flying wave fissure representation. We cannot draw, we cannot represent. It is very uh, uh, hard and it is very complicated. Therefore, we use the feature projection for the representation of 3D molecule into 2D manner for carbohydrates and amino acids. Now, today lecture, we will discuss the two structure are identical or equivalent or not. For this, the Fisher gives following rules and we must be obey this rule for understanding the stereochemistry, for understanding the 3D molecule, for understanding the any reaction mechanism in organic chemistry. It is very necessary and it is very useful for the identification. It is this two structure is equivalent or not. First of all, the rule number first, in which the molecule rotate by the 180 degree in the plane of the paper. For example, lactic acid. This is the lactic acid. In the lactic acid में हम बात करेंगे कि जो आपका ये फॉर्मेट है उसको हम देखते हैं. उसके अंदर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड के लिए. लैक्टिक एसिड को हम लेके चलते हैं. इसके लिए अपन कुछ मार्कर का यूज करते थे. तो मार्कर कोई अच्छा सा मार्कर मिल जाए तो ड्रॉ क्लियर स्टेप्स एंड दिस इज द मार्कर एंड दिस इज द कलर. रेड कलर ले लेते हैं. तो ये जो आपका है, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में. ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार का जो दिख रहा है, ये को हम इस लैक्टिक एसिड को हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर एक OH जो है किस साइड में है, राइट हैंड साइड. बट इन केस ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, ये इसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड. दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है. अब पता लगाए कि ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है या नहीं. तो फिशर कहते हैं कि इफ वी एनी मॉलिक्यूल रोटेट बाय द 180 डिग्री इन द प्लेन, therefore the both structure, previous and final structure, after the rotation or before the rotation structure are equivalent. ठीक है. इन द नेक्स्ट आप कह सकते हैं अपन कि किसी भी मॉलिक्यूल को जिसके कि वो क्रेल केंद्र है, उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग है, उसको हम 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं प्लेन के अंदर, तो हमें जो रिजल्टेड स्ट्रक्चर मिलती है वो स्ट्रक्चर प्रीवियस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट होगी. दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट. नाउ द रूल नंबर सेकंड, any two or any other even number of interchange of the ligands at one chiral center do not change configuration. It means किसी भी chiral center के ऊपर अगर हम दो इवन चेंज करते हैं, जैसे कि इवन चेंज, एक इवन चेंज अपन इधर देख रहे हैं, ये इवन चेंज हो रहा है इसके अंदर, एक इवन चेंज, दिस इज वन इवन चेंज, दिस इज सेकंड इवन चेंज. ये इवन चेंज करने के बाद में जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, ये फाइनल स्ट्रक्चर है. ये फाइनल स्ट्रक्चर हमें ये शो कर रही है कि जो पहली वाली स्ट्रक्चर दूसरी वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, इक्विवेलेंट. दिस इज द रूल नंबर सेकंड. वापस रिपीट करें, कोई भी कायल सेंटर है इसमें दो अगर इवन चेंज करते हैं
पहला इवन चेंज अपन ने ये कर दिया है, दूसरा इवन चेंज ये कर दिया है। तो इस इवन चेंज के बाद में या इस इंटरचेंज के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है, अगर वो पहले आर है तो वो आर ही रहेगी, जैसे आर लैक्टिक एसिड है तो वो भी आर लैक्टिक एसिड रहेगा, एस लैक्टिक एसिड है तो भी एस लैक्टिक एसिड रहेगा। आर और एस क्या है, आर और एस एक नोमेनक्लेचर है जो भी किसी भी कायरल कंपाउंड या कायरल सेंटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको नोमेनक्लेचर के लिए सीआईपी पद्धति या सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा परिप्रेक्ष्य अपन देखें या दूसरे मोटो से हम ये देखना चाहें कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, समझने की कोशिश करना कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी सैंपल से अगर पास आउट होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अगर सपोज करिए वो क्लॉकवाइज करता है तो वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो क्या होता है, लियो रोटरी। इसी तरह से अगर हमारे दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हैं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल है, जिसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है और उसमें कायल सेंटर है, अगर उसको हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश पास करते हैं, यदि वो डेक्स्ट्रो रोटरी अगर पहली स्ट्रक्चर है तो दूसरी भी क्या होगी, उसकी इवन चेंज करने के बाद में या 180 डिग्री के बाद में जो स्ट्रक्चर मिलती है वो भी हमारी क्या होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से जो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, या निम्न में से कौन कौन से जो है आर नामकरण पद्धति या आर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं, या फिर निम्न में से कौन से हैं जो जिसका कि सेम पोलराइज लाइट या डेक्स्ट्रो रोटेटरी सेम डायरेक्शन के अंदर पोलराइज लाइट रोटेट होती है, जिस समतल ध्रुवीय प्रकाश समान दिशा में रोटेट होता है। इनमें कौन कौन से ऐसे समान स्ट्रक्चर हैं या समान कॉन्फ़िगरेशन वाले, समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले स्ट्रक्चर हैं, तो उसका पता लगाना हमें ये नियम पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर थर्ड या रूल नंबर थर्ड, इफ वी चेंज द one interchange in a लैक्टिक एसिड या इन एनी स्ट्रक्चर इन एनी कायल सेंटर वाली स्ट्रक्चर के अंदर एक इवन चेंज करते हैं तो हमें, अगर आर लैक्टिक एसिड चेंज करता है तो हमें एस मिलेगा, यानी उल्टा मिलेगा। डेक्स्ट्रो रोटेट मिलता है तो लियो मिलेगा, लियो मिलता है तो डेक्स्ट्रो रोटेट, ये खास बात है। इसी तरह से क्वेश्चन अपना देख रहे हैं रूल नंबर 4। इस प्रकार से हमने 180 डिग्री रोटेट किया, उसी प्रकार से यदि मैं उसका आधा 90 डिग्री रोटेट करूं तो आप सोच सकते हो कि अगर हमें वो कॉन्फ़िगरेशन उसका आर मिल रहा है तो अब आर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे अपने रोटेट आधा कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से ग्लिसरॉल्डिहाइड में काम में लेता हूँ, इसमें एक को मैंने 180 डिग्री रोटेट किया है। देखिए कि इस प्रकार से मैं रोटेट करने के बाद में जो CHO जो है, ये CHO अब कहाँ चला गया है, आपके हॉरिजॉन्टल चला गया, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आपके फिक्सचर में चला गया। ऐसी कंडीशन कह सकते हैं कि जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल चला जाता है तो हमें क्या मिलता है, कि R का S मिलेगा, यानी दिस इज नॉट ए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम bonding phenomena, but the structure are not equivalent because the plane of right both have the different phenomena, दोनों की अलग अलग उसकी नेचर होगी, अलग अलग नेचर होने के कारण दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं होंगे। My dear students and my dear friends, now we talk about the rule number 5. This is the rule number 5. The rule number 5 is similar to first but different on the planes. In the rule number first, we rotate the 180 degree of the molecule in the plane,
on the plane या in the plane. But in case of rule number 5, we rotate the molecule above the plane and below the plane. इस प्रकार से हम रोटेट कर रहे हैं यूं, अब रोटेट कर दिया आपने इस प्रकार से अपने कान की तरफ, पहले इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, अब इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं। इसी कंडीशन में उसका रोटेशन जो है प्लेन के अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, प्लेन के अंदर जाएगा बाहर आएगा, लेकिन फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट के अंदर पूरा की पूरा प्लेन के ऊपर कर रहा था, इस प्रकार से प्लेन पे ही रोटेट हो रहा था, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही थी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लिप आउट किया ऑफ द प्लेन, फ्लिप आउट कर रहा है इस प्रकार से, पूरा यू रोटेट हो रहा है, यू फ्लिप आउट कर रहा है इस प्रकार से, जो फ्लिप आउट कर रहा है, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी, एस लैक्टिक एसिड है तो आर लैक्टिक एसिड मिलेगा। The same as the breaking a bond to change the configuration of the original molecule. For example, use them from the opposite side of the plane. प्लेन के अपोजिट साइड रोटेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, एस का आर और आर का एस। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल माइंड को पीसफुली इसको रीड करना, क्या कह रहा है उस चीज को आपको पूछना है। तो यहाँ पे अपने क्या मिलेगा, नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, नाउ द रूल नंबर 6, दिस इज द रूल नंबर 6, फाइनल रूल है। इसके अंदर खास बात क्या है, इसमें एक 4 वैलेंसीज है, दिस द 4 वैलेंसीज। द फोर्थ वैलेंसीज जो लिगेंड या फोर्थ लिगेंड होगा उसको तो क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। बाकी जो 3 लिगेंड्स है या 3 मॉलिक्यूल्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं या 3 आपके एटम्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करो सभी को एक साथ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। इस प्रकार से हमने कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस मॉलिक्यूल को H से COOH की तरफ, COOH से CH3 की तरफ, इस प्रकार से हम रोटेट कर रहे हैं, और हमने OH ग्रुप को क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर और ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिख रही है, दोनों क्या होगी, दूसरे के आइडेंटिकल होगी। ठीक है ना, इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन करो या एंटी क्लॉकवाइज करो। तो जब एक ग्रुप को कांस्टेंट मानते हुए 3 ग्रुप को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, दिस इज योर चॉइस, हमेशा वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द rule number 6. The Fisher projections can be manipulated by the rotation a group of any 3 ligands, a group of any 3 ligands in a clockwise or anti-clockwise direction. The fourth ligand does not change, its position is equivalent to 2 interchange। तो इंटरचेंज करने पर हमें अब इक्विवेलेंट अपन को क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मिलेगी। इसी प्रकार से हम जब इवन चेंज करते हैं तो इवन चेंज हमने देखा रूल नंबर सेकंड, तो भी हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। रूल नंबर 6, इस प्रकार से एक क्वेश्चन करते हैं तो उसको हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल तो अनसिमिलर दिख रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम इन नियमों से उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। ये जो चीज है हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये नियम को स्ट्रांगली फॉलो करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हमेशा में याद में रखते हुए उसको चीज को देखना है, फिर जाकर के हम RS नोमेनक्लेचर में इसको दोबारा से इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, D और L के रूप में इसका एग्जाम्पल रूप में लेंगे, जब हम इसके बारे में मिस्ट्री करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही काफी, अगला लेक्चर के लिए हम तैयार रहेंगे, उसके लिए हम जो है और इसको बार रिवीजन करके पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके इंटरकन्वर्जन। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे फिशर का फ्लाइंग वेज में, फ्लाइंग वेज फिशर में, फिर सोहर्स का न्यूमैन में, न्यूमैन का सोहर्स। ओके, दैट्स ऑल। अब हम जो है बात करते हैं एंडिंग की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। स्टॉप द शेयरिंग एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग।